رمضان رمضان ایمان ہے رمضان 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 مہمان ہے رمضان رمضان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مسائل ہر مسلمان کو معلوم ہیں اور رمضان کی عزت و عظمت آپ حضرات کو معلوم ہے، فضائل آپ حضرات کو معلوم ہے۔ مسائل کے حوالے سے بات چیت کروں گا۔ ایک فضیلت یہی کافی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتے روزہ خالص میرے لیے ہے، لہذا اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، روزے کے بدلے میں دیا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس کا ہو گیا تو بڑی فضیلت ہے اور تمام مسلمان خوش ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی بھی دے رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے تو مبارک ہو۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جس نے رمضان کی مبارکبادی دے دی تو اس کو یہ ملے گا۔ یہ حدیث نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ کسی مہینے کی آنے کی یا جانے کی خوشخبری یا بدخبری یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال عید کے دن مبارک ہو یہ مستحب ہے، ثواب عیدے کو کہتے تھے تو وہ ٹھیک ہے۔ باقی رمضان مبارک ایک عظیم مہینہ ہے۔ ان اللہ تعالی انزل اشرف الکتب علی اشرف الرسل بوسیلۃ اشرف الملائکہ فی اشرف شہور السنہ علی اشرف بقاع الارض۔ علامہ ابو الفدا اسماعیل بن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے شریف باعزت کتاب قرآن کو باعزت مہینے میں باعزت قرآن کو باعزت فرشتے کے وسیلے سے باعزت زمین کے جو ٹکڑے ہیں مکہ اور مدینہ اور باعزت مہینہ رمضان المبارک میں اس کو اتارا۔ ماشاءاللہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2 رکعت نفل پڑھیے، گناہوں سے معافی مانگ لیجئے اور توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے۔ الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواک۔ اے اللہ، آپ کا گناہگار بندہ آپ کے دربار پر آ چکا ہے اور اپنے گناہوں کا اقراری ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ اگر آپ اس کے اہل ہیں تو، اور آپ اس کے اہل ہیں کہ آپ ہم کو معاف فرما دیں، لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر لیجئے۔ اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو کون ہم پر رحم فرمائے گا، کون ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، گناہوں سے معافی مانگ لیجئے اور 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز، آنکھوں کا روزہ، دماغ کا روزہ، دل کا روزہ، روحانیت کا روزہ، زبان کا روزہ، پیٹ کا روزہ۔ ہاں، افطاری سحری میں حرام بھی نہ ہو اور گناہوں سے توبہ کیجئے۔ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجئے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ بہرحال تو رمضان کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کے لیے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھو، صرف ایک صورت میں کفارہ ہے، بس ایک صورت میں، یاد کرو۔ 2 مہینے روزے ہیں، پیسے نہیں چلیں گے، پھر تو مالدار پیسے دیں گے اور غریب جو ہے نا روزے رکھیں گے، نہیں، ہر ایک آدمی روزے ہی رکھے گا 2 ماہ کفارہ کے۔ کب؟ جب رمضان کا روزہ قصدن اور مستی سے، قصدن یا مستی سے، قصدن یا مستی سے توڑ دے تو اس پر کفارہ ہے۔ میں نے کہا قصدن، اگر غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے، مثلا منہ میں پانی ڈال لاتا اور نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹا، کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ غلطی ہو گئی۔ قصدن سے کفارہ آتا ہے۔ اسی طرح بھول کر کھایا پیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انما اطعمک اللہ وسقاک، اللہ نے آپ کی دعوت کی، آپ کو کھلایا پلایا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور قصدن کے ساتھ ایک اور لفظ ہے مستی سے۔ اگر ایک آدمی بیمار تھا
डॉक्टर ने कहा रोज़ा तोड़ दो, या मर रहा है अगर न खाया, मर जाएगा अगर न पिया पानी, तो रोज़ा अगर वो इफ्तार कर ले तो उस पर कफ़ारा नहीं है। कफ़ारा एक सूरत में क़स्दन और मस्ती से, बस क़स्दन या मस्ती से वो क्या कर ले, खाए पिए रमज़ान में दिन को या मिलाप कर ले, तो उस पर 2 महीने रोज़े हैं, पैसे नहीं चलेंगे। और जो रमज़ान के रोज़े रखता है वो कफ़ारा देगा, पैसे नहीं चलेंगे। तो एक सूरत में कफ़ारा है। बाकी बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन हम ये समझते हैं कि इससे रोज़ा टूट जाता है। मसलन कान में दवाई डाल दी, आँख में, रोज़ा नहीं टूटता। टीका लगा लिया, रोज़ा नहीं टूटता। ड्रिप लगा लिया, रोज़ा नहीं टूटता। चाहे ताकत का ड्रिप है, टीका है या बीमारी का, रग का है या गोश्त का है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। बाज़ उलमा का इसमें इख्तिलाफ भी है, एहतियात अफजल है कि इसको मतलब ये है कि टीका न लगा लिया जाए, इसलिए कि बाज़ उलमा का इख्तिलाफ है। अक्सर बुज़ुर्ग यही फरमाते जो मैंने बता दिया कि टीका और ड्रिप से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर ताकत का टीका लगाए रमज़ान में या ड्रिप चढ़ाए पानी का, तो मकरूह है और गलत है और कोई इस तरह करता भी नहीं है। बहरहाल तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। खून लेने देने से रोज़ा नहीं टूटता, खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, ज़ख्मी होने से रोज़ा नहीं टूटता, दांत निकलवाने से रोज़ा नहीं टूटता, खून लेने देने से रोज़ा नहीं टूटता। उल्टियाँ हो गई बहुत सारी उल्टियाँ हो गई, वज़ू तो टूट जाता है, रोज़ा नहीं टूटता। उल्टियों से रोज़ा नहीं टूटता। सुबह इस हाल में हो गया, तवज्जो, कि सूरज निकल चुका है, इसने नमाज नहीं पढ़ी है, सहरी नहीं की और गुस्ल भी फ़र्ज़ है, गुस्ल भी फ़र्ज़ है उस पर, 7-8 बजे उठ गया, जवाब रोज़ा बरकरार है। गुस्ल कर ले, मुंह और नाक में पानी डाले, गरगरा और नाक कच्ची हड्डी तक पानी पहुंचाना, ये सुन्नत है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। लिहाजा मुंह और नाक में पानी डाले, पूरे बदन को धो ले, गुस्ल हो गया, मुकम्मल हो गया। और नमाज पढ़ ले, नमाज नहीं पढ़ी, और सहरी के बगैर रोज़ा हो जाता है। तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, सहरी करो, सहरी में बरकत होती है। लिहाजा सहरी करेंगे, इसमें बरकत होती है, ताकत मिलती है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और रोज़े का ताल्लुक़ इफ्तार और खोलना और बंद करना, उसका ताल्लुक़ सायरन के साथ नहीं, अज़ान के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक़ वक्त के साथ है। ये ने एक मौज़िन ने सुबह अज़ान दे दी, अभी टाइम बाकी है, 5 मिनट बाकी है, नक्शा हमने देख लिया, नक्शा ज़रूर पास रखो अपने जन शहर का। अब आपने जब देख लिया 5 मिनट बाकी है, वो तो अज़ान दे रहा है, आप खाएं पिएं, क्यों 5 मिनट बाकी है, उसने जो अज़ान दे दी गलत दे दी। मसलन इफ्तारी के टाइम हो गया, जो टाइम मुकर्रर है, मसलन हम वैसे बोल देंगे आज के दिन 7:18 मसलन मिसाल के तौर पर मुकर्रर है, 7:18 हो गया मिनट, 7:18, 20 हो गए, 18, 19, 20, अज़ान की आवाज़ नहीं आ रही है या सायरन नहीं बज रहा है, चाहे बिजली है या नहीं है, तो इस सूरत में आप रोज़ा इफ्तार कर लें, क्यों टाइम हो गया ना, उसने सायरन में देर कर दी, अज़ान में देर कर दी, आप इफ्तार कर दें, चाहे अज़ान और सायरन नहीं बजा है, तो इसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए, अक़ल अता फरमाए। तो ये है रोज़े के मसाइल कि किससे रोज़ा टूटता है, किससे नहीं टूटता। टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हलक के नीचे न गया उसका मज़ा, तो रोज़ा नहीं टूटता। या कोई चीज़ चकली थूक दी, रोज़ा नहीं टूटता। खुशबू से, तेल लगाने से, नाखून काटने से, बाल काटने से, ज़्यादा नहाने से, हाँ, खुशबू सूंघने से, इससे रोज़ा नहीं टूटता, इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। नाक में दवाई डालो तो टूट जाता है, कान और आँख में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता। बस में आ गई नहीं आ गई, ये है शरई मसाइल, मैंने आप हज़रात के सामने बयान कर दिए। रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, तो एतिकाफ़ 10 दिन का सुन्नत मुअक्कदा है और पूरे महीने का सुन्नत गैर मुअक्कदा है। और तरावी पढ़ लें 20 रकात, कुल उम्मत का इस पर इजमा है, तरावी जो है ना ये 20 रकात है, तो 20 रकात तरावी पढ़ लें। जो लोग रात को ड्यूटियाँ करते हैं या दर्जी हैं या कोई मसला है, तो वो तरावी अगर न पढ़ें तो न पढ़ें। जब
सहरी के लिए वो उठें तो सहरी के टाइम पढ़ लें, सहरी के टाइम पढ़ लें। लेकिन अगर जमात के साथ न पढ़े तो न पढ़े। वो लोग जो रात को ड्यूटी करते हैं, रात को शिफ्ट है, सब्ज़ी मंडी का काम है, या दर्जी हैं, ये दर्जी सुस्ती करते हैं नमाज में भी, रमज़ान में जोड़े जो सीते हैं ईद के लिए, तो 5 वक्त नमाज पढ़ें, शौक़ से पढ़ें। और जमात के साथ अगर आप तरावी नहीं पढ़ सकते हैं तो आप अपने घर में, कमरे में, दुकान में पढ़ लें, सुस्ती न फरमाया। औरत के लिए भी तरावी है, सिर्फ मर्द के लिए नहीं, दोनों पढ़ेंगे, शौक़ से पढ़ेंगे, पूरा कुरान इसमें सुनें। और फिदिया, नमाज और रोज़ा और सदक़े फ़ितर, इसका एक ही मकदार है, 2.25 किलो गंदम, बस 2.25 किलो आटा, उसकी जो कीमत है, बाज़ मौलवी कुछ कहते हैं, बाज़ मौलवी कुछ कहते हैं, ख़ुद हिसाब लगा लो, 2.25 किलो आटे की कीमत, बस सदक़े फ़ितर। और जो मालदार हैं, लाख पत्ती हैं, तो वो खजूर का हिसाब लगाए 750 रुपये, 3.5 किलो। और जो करोड़पति, अरब पत्ती हैं, हाँ, तो वो किशमिश का हिसाब लगाए 1400 से लेकर 1700 रुपये, 3.5 किलो किशमिश, असली वाली, आला वाली, उसके पैसे दे फ़ी फ़र्द, जिसको अल्लाह ने दौलत दी है। तो ईद के दिन चांद रात हम सारी इबादत ज़ाया कर देते हैं रमज़ान की, तो चांद रात से पहले जल्दी जल्दी पहले सौदा सलफ कर लो, इसराफ से बचकर, हराम से बचकर, गुनाह से बचकर। चांद रात बाज़ार न जाए, सारा सवाब ख़राब हो जाता है। सारी इबादत का हम बेड़ा गर्क कर देते हैं ईद के दिन। 5 वक्त नमाज जमात से नहीं पढ़ते हैं। अभी से इरादा कर लो, 5 वक्त नमाज जमात से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ईद के दिन, और उसके बाद 3 दिन फिर वो आदमी बरकरार रह जाता है दीन पर। तो चांद रात के बारे में मैंने बताया, वक्त ज़ाया न करो, बदनज़री न करो, गुनाह न करो। और लैलतुल जायज़ा, इनाम की रात, ईद की रात, लोग कोई उठता ही नहीं तहज्जुद के लिए, उठें और तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ लगाएं, ईद की नमाज़ शौक़ से पढ़ें, ईद से पहले फजर की नमाज़ क़ज़ा कर लें अगर नहीं पढ़ी है, ईद के लिए आ गए वाजिब है, फजर नहीं पढ़ी है, इस तरह सुस्ती मत करें। एक दूसरे के साथ मिले, मोहब्बत से, बुग़्ज़ हसद ख़त्म करें और आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें। इसी में अमन है, इसी में चैन है, इसी में सुकून है। तो मैंने तरावी की, एतिकाफ़ की बात भी बताई। एतिकाफ़ लोग करते हैं, फिर लोग हार पहनाते हैं या बाज़ारों में घुमाते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये कश्मीर फ़तह करके आ गया, अब बर्मा जा रहा है क्या किस तरह उठाएंगे जी? वही नमाज जो पढ़ के आ जाता है वो किस तरह हम उसको उठाते हैं, ख़ुद घर चला जाता है ना। तो इस तरह मत करो, इससे रियाकारी मत बना दो। तो लैलतुल जायज़ा, ईद की नमाज को क़ज़ा न करना, और फ़िदिया, सदक़े फ़ितर और एतिकाफ़, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और रमज़ान मुबारक के मसाइल भी आपको सुना दिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। रमज़ान रमज़ान ईमान है, रमज़ान 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 मेहमान है, रमज़ान रमज़ान रमज़ान।